یہ جو اتنی بڑی یہ تقریباً 1000 کی یہ بک صفحے کی یہ بک ہے، اس میں سے میں نکال کے آپ کو دوں گا، اور یہ اس کو دیکھیں اور پڑھیں اور ماتم کریں، ماتم کریں اپنے حال پہ بھی، ہمارے حال پہ بھی اور صوبے کے حال پہ بھی کہ ہو کیا رہا ہے، یہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہے۔ میں کسی پارٹی کو یہاں پہ نہیں ایڈریس کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری لاعلمی کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس کیا ہے، اور ہمارے پاس اتنی بڑی بک پکڑا دی جاتی ہے، ایک وہ سبز ربن میں باندھ دی جاتی ہے، اور ہم تمام ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم ادھر نیچے جائیں اپنی لیجسلیشن برانچ میں، وہاں سے یہ بک اٹھائیں اور لے جائیں، آگے پیچھے ہمیں کوئی بریف، میں بھی گورنمنٹ میں رہا ہوں، میں یہ حقیقت بات کر رہا ہوں۔ 12 کروڑ روپے کے سیکورٹی آلہ جات، 12 کروڑ روپے کے سیکورٹی آلہ جات پرائم منسٹر کے لاہور کے سب آفس کے لیے، سر پرائم منسٹر کے لاہور کے سب آفس کے لیے 12 کروڑ روپے کے سیکورٹی آلات لیے گئے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کیا کرتے تھے، اس سے پہلے اس کی سیکورٹی کا کیا بندوبست تھا؟ جناب اسپیکر، پولیس میں 10 ارب روپے انہوں نے وہی رائٹ آف کیے ہیں، سبسیڈائز کیے ہیں، 10 ارب روپے ان کا جو پیج نمبر ہے وہ ہے سر 31 to 39، سارا پولیس کا جو ان کا یہ اب بک منگوا لی ہے، ویسے میں نے یہ ٹیگ بھی لگائے ہوئے تھے، ادھر سے میرے آنریبل چیف اپنا فائنانس منسٹر صاحب دیکھ لیتے تو میرے پاس بھی یہ بک ہے۔ اس میں سر ہمیں یہی چاہیے، ہم نے یہی پتہ کرنا ہے کہ کس کس کو کیا کیا دیا گیا ہے۔ آخر آپ نے معاف کیا ہے، یہ قوم ہماری اتنی امیر ہو چکی ہے، ہمارا صوبہ ہمارا ملک اتنا امیر ہو چکا ہے کہ ہم قرضے معاف کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں بتایا جائے کہ کس کیٹیگری میں کتنا قرضہ معاف ہوا ہے۔ محکمانہ قرضے معاف ہوئے ہیں، کس کو کیا دیا گیا ہے، کیا اس میں کسی سپاہی، کسی حوالدار، کسی ایس آئی کو کچھ دیا گیا ہے، یا ہمیں یہ بتایا جائے کہ کتنے پرسنٹیج کس کیٹیگری میں دیے گئے ہیں۔ اگر ادھر بھی سر وہی ہے کہ آپ دیتے ہیں گریڈ 18 سے اوپر، ان کی گاڑیوں پہ خرچے کرتے ہیں، ان پہ خرچے کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ہماری قوم اور ہمارے صوبے پہ ایک ظلم ہے۔ پولیس کی کارکردگی ہم سب کے سامنے ہے۔ میرا جو ڈسٹرکٹ ہے جناب اسپیکر سکیٹرڈ ایریاز ہیں، اور میرا کچھ ایریا ملتا ہے کے پی کے ساتھ۔ ایک FIR ہوئی ہے میرے اوپر تھانے سٹی 6:15 پہ۔ یہ بڑا واقعہ ہے سر، یہ آپ سنیں، میں کریکشن کرتا ہوں، پورے ہاؤس کے سامنے میں پولیس کی کارکردگی بیان کرتا ہوں، میرے اوپر ہوئی ہے 6:15 پہ میرے اوپر ایک FIR ہوئی ہے، اور 6:35 پر ایک FIR میرے اوپر ہوئی ہے، ایک تھانہ ہے کمر مشانی، وہ ڈسٹرکٹ کرک کے ساتھ ہے، بنو کے ساتھ، ان کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ہے 255 کلومیٹر۔ 255 کلومیٹر میرے اوپر ایک FIR ہوئی ہے، صرف 30 منٹ کے فرق سے، کہ 30 منٹ پہلے اس بندے نے یہاں پہ ہنگامہ آرائی کی ہے، اور میرے پاس جیٹ طیارہ تھا، میں اس میں بیٹھ کے پھر وہاں پہ میں نے تھانے پہ حملہ کیا۔ یہ تو سر ہماری پولیس کی کارکردگی ہے، اور میں آگے جب پولیس کی کارکردگی کو پڑھوں گا تو آپ مزید حیران ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کے علم میں بھی نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے آنریبل منسٹر کے علم میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو اتنی بڑی یہ تقریباً 1000 کی یہ بک صفحے کی یہ بک ہے، اس میں سے میں نکال کے آپ کو دوں گا، اور یہ اس کو دیکھیں اور پڑھیں اور ماتم کریں اپنے حال پہ بھی، ہمارے حال پہ بھی اور صوبے کے حال پہ بھی کہ ہو کیا رہا ہے، یہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہے۔ میں کسی پارٹی کو یہاں پہ نہیں ایڈریس کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری لاعلمی کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس کیا ہے، اور ہمارے پاس اتنی بڑی بک پکڑا دی جاتی ہے، ایک وہ سبز ربن میں باندھ دی جاتی ہے، اور ہم تمام ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم ادھر نیچے جائیں اپنی لیجسلیشن برانچ میں، وہاں سے یہ بک اٹھائیں اور لے جائیں، آگے پیچھے ہمیں کوئی بریف، میں بھی گورنمنٹ میں رہا ہوں، میں یہ حقیقت بات کر رہا ہوں۔ سر اگلی بات اس کا ہمیں ضرور پتہ کرنا چاہیے کہ یہ جو 10 ارب روپے ہے یہ کہاں گیا ہے، یہ کس نے لیا ہے، کس شعبے میں گیا ہے، کون سے افسران ہیں جنہوں نے لیا ہے۔ جناب اسپیکر، ایک بات آپ ہسٹری اٹھا لیں، 1937 سے پہلی ایڈلٹ اسمبلی بنی، اس سے لے کے آج دن تک
हम जितने भी पॉलिटिशियन हैं, हम जितने भी सियासतदान हैं, एक एक चीज, एक एक रुपया, एक एक फेवर जो आपने लिया है, हमने लिया है, किसी पार्टी के बंदे ने लिया है, वो रिकॉर्ड पे है। आज आप निकाल के देखिए, सब रिकॉर्ड पे है। अगर किसी की तीसरी पोस्ट ने कोई फेवर लिया है तो उसका भी रिकॉर्ड है। जब से ये असेंबली 1937 से ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसपे आज हम फॉल कर रहे हैं, जब से ये आई है, तो सर इनका हमें क्यों पता न चले? हमें ये पता क्यों न चले कि 10 अरब रुपया जो इन्होंने राइट ऑफ करवाया है, ये किस सेंस में करवाया है? क्या हमारे आईजी साहब जो हमारे आईजी साहब हैं, क्या वो इतने गरीब हो चुके हैं? क्या हमारे जो आरपीओ साहब हैं, हमें पता चले उनकी जरूरियात क्या हैं? मैं इस हद तक हक में हूं, अगर ये किसी आपके लोअर स्टाफ को पैसे गए, मैं बिल्कुल उस हक में हूं। हमारे सिपाही हैं, हमारे ASIs हैं, ये सारे ठीक है, उनकी जरूरियात है, लेकिन आप अगर एक सर्टेन लिमिट से आगे ये पैसे गए तो उसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे और हम इसका भी ऑर्डर का जनाब मुतालबा करेंगे। जनाब स्पीकर, इसी पुलिस में एक और बड़ी मजेदार चीज है सर, कि जो 5 अरब रुपए के जो फिजिकल एसेट्स है, 5 अरब रुपए के फिजिकल एसेट्स है जनाब इसमें, जिसमें 5 करोड़ रुपए की गाड़ी गवर्नर हाउस के लिए खरीदी गई। अब गवर्नर हाउस की गाड़ी पंजाब गवर्नमेंट खरीद के दे रही है, क्या जरूरत थी? क्या उसकी वजूहात लिखी गई है कि गवर्नर हाउस में 5 करोड़ की गाड़ी जरूरत थी? गवर्नर साहब मेरे ख्याल में को उनके पास गाड़ी नहीं थी, जज उनकी सिक्योरिटी पे थे, वो कोई घोड़ा गाड़ियों पे सवार होके आते थे, तो उनके लिए 5 करोड़ की गाड़ी खरीदनी पड़ गई। ये सर वो अलल्ले तलल्ले हैं जो पिछले 9 माह में 11 माह में हमें विरसे में मिले हैं, और वो गवर्नमेंट जिसकी एक ही ड्यूटी थी कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनें, माएँ, जो भी उनसे रिलेटेड है, उनको आपने क्रश करना है, और उनका कोई काम नहीं था जनाब स्पीकर। ये उस पुलिस के लिए ये 5 करोड़ रुपए की गाड़ी डेफिनेटली पुलिस डिपार्टमेंट में गई होगी, बट हमें ये पता चलना चाहिए कि ये उधर 5 करोड़ की गाड़ी क्यों गई है, क्या जरूरत पड़ गई। मैं तो रोज गुजरता हूँ वहां से, तो हमें तो यही मिलता है कि यहाँ पे रास्ता बंद है, आप ऊपर से चले जाएंगी या आप सामान से चले जाएंगी। हमें तो उधर गवर्नर हाउस की तरफ डेली ऐसा रूट लगा होता है कि रास्ता ही नहीं होता। वहां पे तो कोई VIP आ रहे हैं, जा रहे हैं, उधर को रास्ता भी, जिस दिन गवर्नर हाउस खुला हो उस दिन हम ये समझते हैं कि आज यार इधर को सुकून है, नहीं तो उधर तो इतनी बेसुकूनी अंदर है कि उधर तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और गैर जरूरी लोग। जनाब स्पीकर, एक और चीज इसमें है, एक चीज है जनाब स्पीकर, 12 करोड़ रुपए के सिक्योरिटी आला जात, 12 करोड़ रुपए के सिक्योरिटी आला जात प्राइम मिनिस्टर के लाहौर के सब ऑफिस के लिए। सर, प्राइम मिनिस्टर के लाहौर के सब ऑफिस के लिए 12 करोड़ रुपए के सिक्योरिटी आलात लिए गए। अब मुझे ये बताएं कि उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते थे, उससे पहले उसकी सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त था? क्या ये वजूहात बयान की गई है? क्या ये बताया गया है कि इस 12 करोड़ रुपए लगाने से पहले डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत फर्ज है सिक्योरिटी इदारों का? मैं इसमें, मेरा ये दूसरी राय नहीं है। वैसे जो प्राइम मिनिस्टर अवाम के जेन्युइन वोटों से बन के आए, उसका फर्ज है सिक्योरिटी इदारों का कि उसकी हिफाजत करें। उसके तो उन्होंने जेल में डाला हुआ है, तो फॉर्म 47 के पैदावार जो है उनकी वो हिफाजत कर रहे हैं। बट ये मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये 12 करोड़ रुपया सिक्योरिटी इदारों की सिक्योरिटी के लिए जो आला जात उधर लगाए गए हैं, उससे पहले क्या पोजीशन थी? जिस जगह पे ये लगाए गए हैं और जिन आला जात की जगह पे ये सारी चीजें लगाई गई हैं, क्या वो खत्म हो गई थी? क्या वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए काफी नहीं थी? सर देखिए, ये अवाम का पैसा है, उधर तो आपने अवाम को बनाया हुआ है भिखारी। एक 2028 रुपया प्लस 4,000 4,500 रुपए का एक बैग सिर्फ एक तस्वीर के लिए पूरी अवाम को आपने लाइन में लगाया हुआ है, और इधर आप 12 करोड़ रुपए का आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी आला जात प्राइम मिनिस्टर के लाहौर के सब ऑफिस के लिए।
देखिए सर, ये हमारा काम है चीज़ों को पॉइंट आउट करना, और ये भी मेरे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये चेक करें। और इसमें मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि सर ये जो चीज़ें हैं ये मामूली नहीं है। ये 12 करोड़ रुपया, हम ये कह रहे हैं कि 12 करोड़ की वजह से अपोजिशन लीडर जो है वो इतनी लंबी तकरीर कर रहे हैं। ये 12 करोड़ रुपया उन लोगों की जनाब स्पीकर एक एक रुपए की कमाई है, जिनके घरों से हम उनकी फसलें उठा के और औने पौने बेच के, और 10-10 दिन सर वो हबीब बैंक और कमर्शियल बैंकों की लाइनों में लगे होते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते। ये वो पैसा है, ये पैसा ना मेरा है, न किसी हमारे किसी दोस्त का है, ना टेनी साइड के बेंचों के किसी का है, और ना उनकी हुकूमत उनके लीडरों का है, ना हमारा है। ये उन लोगों का पैसा है। ये तो पूछा जाए कि वजीर आजम साहब की सिक्योरिटी को यकदम उनके सब ऑफिस में क्या थ्रेट मिल गए थे कि फौरन 12 करोड़ रुपया उन्होंने लगा दिया। सर इसमें कम्युनिकेशन पे मैं आ जाता हूं। कम्युनिकेशन, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। सर कम्युनिकेशन में 14 अरब रुपए है, 106 है जनाब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मैं ये जो पेज है सर, इसमें इन्होंने किया ये है कि इन्होंने तलागंग और कोट अद्दू यहां पे इन्होंने एडहॉक बेसिस पे इन्होंने असामियां क्रिएट की हैं सर। अच्छा, अरबों रुपए इन्होंने उधर रखे हैं। अब आप भी जनूबी पंजाब से ताल्लुक है, मेरे सीनियर पार्लियामेंटेरियन ऑनरेबल सरदार शाहबुद्दीन साहब बैठे हैं, जाज शफी साहब हैं, ये सारे जनूबी पंजाब के हैं। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आप 3 पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, किसी को इन 37 पोस्टेस का पता है? बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने अपने लिए रखी हैं। ये इसलिए रखी है जनाब स्पीकर कि इन पोस्टेस को, ये घोस्ट पोस्टेस होती है, इनकी बनती है लिस्ट, इनकी लिस्ट बन के जाती है आपके एसी के पास। वो इनमें से 37 पोस्ट अगर हैं तो इनमें से वो 7 पोस्टों के पैसे खुद रख लेते हैं, 30 के आगे बांट देते हैं। ये हर महीने हो रहा है, और ये वो मिसलीनियस बेईमानी मैं इसको कहूंगा, मिसलीनियस बदजानती कहूंगा, जिसका किसी को पता नहीं होता, जो रिकॉर्ड पे ही नहीं आती। इसी शिक में तलागंग में 37 पोस्टेस क्रिएट की गई हैं, ये पिछले 9 महीनों में क्रिएट की गई हैं। और जो 14 अरब रुपया तकरीबन रखा गया है, 10 से 14 अरब के दरमियान, 10 अरब रुपया जो इन्होंने रखा है, तकरीबन 10 अरब रुपया जो मेंटेनेंस है रोड्स की। अब 2 तरीके होते हैं जनाब स्पीकर, इनकी एक होती है आप इसको रिहेबिलिटेशन, एक होती है एक होती है आप इसको एक उसका कहते हैं रिमॉडलिंग कर देते हैं, उस पर वो थोड़ी सी बजरी डाल के तो कर देते हैं। अच्छा, इसमें 10 अरब रुपए है जनाब। अब 10 अरब रुपए में मुझे आप ये बताएं कि किस किस जगह पे कितनी रिहेबिलिटेशन हुई है और कितनी रिवैम्पिंग हुई है, क्योंकि ये 10 अरब रुपये ही वो है जनाब जिसमें SDO से, ओवरसीयर से लेके आपके सेक्रेटरी तक ये सारा कुछ होता है। और अगर हम इन पैसों को इसी तरह जाया करते रहेंगे तो 1172 अरब रुपया, 1172 अरब रुपया